बीच डॉक्टर निर्मल कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर न्यू दिल्ली से यहाँ पे हमारे बीच मौजूद है, और डॉक्टर वीनस जैन, प्रोफेसर अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा से हमारे बीच उपलब्ध है। और ये दोनों ही आपको हमारे एंशियंट और जो मेडिएवल है और आज तक आपको जितने भी हमारे शिक्षा में जितनी भी उत्पत्ति हुई है और उसके मिलते जुलते जितने भी प्रकार के हमारे जो शिक्षा में परिवर्तन आए हैं उन सभी से आपको रूबरू करवाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज इस चर्चा के बाद आप इस 500 कोर्स के इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और उम्मीद करता हूं आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछ के हमसे जुड़ने की भी कोशिश करेंगे। मैं एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैडम आपका भी स्वागत करता हूं, सर आपका भी स्वागत करता हूं। और अब मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम सभी शिक्षार्थियों तक पहुंचे और इस विषय पे अपनी चर्चा आरंभ करें। धन्यवाद सर। Education is a complicated process. These days we see it in two ways, education and qualification. First of all, I would like to clarify the difference between the two. Education means developing some skills, how to live life, and qualification means to attain degrees. In ancient education system, it was completely based on skill development, which was education, and not on qualifications. Degrees did not matter at all, neither were too many degrees imparted like in the present era. So, I would take you through the journey of ancient Indian education system, which started right from the inception of Indian system. India is a land of educational excellence through imparting education in a systematic manner since ancient times. It is not only the spiritual guru for the rest of the world, but also a country where knowledge has been imparted in a systematic manner. The most important thing in education is what is the aim of education? Why are we educating people? So it's very important that first of all we try to understand what was the primary aim of education in ancient period. Its primary aim was to institute and train scholars for living a complete life and for manifestation of divinity in humans. Another special characteristic of ancient Indian education system was it was fully and completely residential. When the student, see, this life was divided into 4 ashrams. It was Brahmacharya, Grihasth, Vanprasth and Sannyas ashram. This Brahmacharya ashram was basically made for education, and during this period the child used to leave his home and go to the place of his teacher, which was known as Gurukul. Gurukul basically is a Sanskrit word where Guru means teacher and Kul means family. So child here becomes the part of the family of the Guru, so that the education is inculcated in the form of sanskars in the child. Gurukul was a complete type of residential schooling system wherein holistic education was given. The Guru Shishya tradition is a sacred one in India. The word Gurukul, as I told you, is not only the name of a place, it's the name of a culture which developed in India and has gone beyond. Today also we see residential schools which have developed on the same tradition, but at that time, that was the time where Guru was above God, as it was said, Guru Govind do khade kaake lagu paaye, Balihari Guru aapne jin Govind diyo bataye. Means Guru was above God. Why above God? Because it was Guru who told about the God, what is God and how we should perform the prayers. So Gurukul was an important place, much more important than a temple. When the child used to go to Gurukul, he used to be the member of the family of the Guru. So he used to help the Guru in carrying out all the daily affairs, carrying out all the household and whatever work was there in the family of the Guru. Typically, the Guru did not accept any money in terms of fees from the child. It was basically a relationship built, but when the child used to complete his education, at that time there was a system of Guru Dakshina, which may be monetary, which may not be monetary, right? The Guru may ask the child to perform some particular task for the child, for him in terms of Guru Dakshina. Otherwise, giving Guru Dakshina was considered as completing the education at Gurukul.
ये गुरु दक्षिणा मैम, जो अभी हम बात कर रहे हैं, इसको हमारे विद्यार्थी को हम अगर ये बताने की कोशिश करें, अगर आज के संदर्भ में अगर थोड़ा सा ले जाएं, तो एक एग्जाम्पल से हम इनको समझा सकते हैं किस प्रकार की गुरु दक्षिणा, क्योंकि हमारे जो अभी अनट्रेंड टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सारे प्राइमरी जो ये पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो अनट्रेंड हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि एक छोटे बच्चे में अगर ये हम इनकलकेट करने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल वो परंपरा तो जो गुरु और शिष्य वाली परंपरा तो नहीं है, चल रही है, और ना ही हमारे आश्रम चल रहे हैं। हाँ, कई क्षेत्रों में आश्रम जरूर चल रहे हैं, कई जगहों पे भी हमारे देश में अभी इस पद्धति से शिक्षा ग्रहण की जा रही है, लेकिन जो हमारे साथ बहुत सारे शिक्षार्थी जो जुड़े हैं उनको हम थोड़ा सा अगर और हम ये बताने की कोशिश करें, और ये एक वैल्यू सिस्टम भी अगर हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें किस तरह से हम अपने विद्यार्थियों में इनकलकेट कर सकते हैं, जो अनट्रेंड टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाएंगे उनमें अगर ये थोड़ा सा वैल्यू सिस्टम अगर हम इनकलकेट करने की कोशिश करें उनके माध्यम से, तो मैं समझता हूँ कि एक ये परंपरा को फिर से मॉडर्न रूप में उतारा जा सकता है। देखिए बेसिक डिफरेंस, इसमें बेसिक डिफरेंस है कि आज एजुकेशन को एक बार्टर सिस्टम के जैसे ले लिया गया है, दैट द एजुकेशन इज सोल्ड, एजुकेशन दी जाती है और फीस ली जाती है, वेयर इट वाज टोटली डिफरेंट इन द एंशिएंट टाइम्स। एजुकेशन का फीस से कोई लेना देना नहीं था। जब तक एक विद्यार्थी गुरु के पास था, वो उसके कुल का, उसके परिवार का एक सदस्य था, और जिस तरह से एक परिवार में रहने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना होता, जो संस्कार आपके माँ बाप उसको आपको दे रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना होता, सेम वही सिस्टम गुरुकुल में एजुकेशन का था। और जिस तरह से हमारे यहाँ पुरुषार्थ बताया गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जब आपने एजुकेशन को पाया तो धर्म का अर्थ यहाँ रिलीजन नहीं है, धर्म का अर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी उस गुरु के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसने आपको इस संसार में रहने के योग्य बनाया। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। वो दक्षिणा जरूरी नहीं कि मॉनेटरी हो, कि पैसा हो या कुछ भी हो, वो गुरु की कोई इच्छा हो सकती थी, जो वो आपके उनके लिए कोई कार्य किया जा सकता था, उनकी किसी इच्छा को पूरा किया जा सकता था, वही गुरु दक्षिणा होता था। सेवा के भाव में वो अगर गुरुकुल में भी रह जाए और उनकी सेवा करते रहे, ये भी एक कार्य हो सकता था। So basically it was not a barter system which has now erupted in the common era. हमारे शिक्षा पद्धति में एक ये थोड़ा सा बदलाव जरूर आ गया, बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, बदलाव आ गया अगर हम इनफैक्ट ये कहें। लेकिन भारतीय शिक्षा पद्धति में ये बहुत अनोखी चीज देखी गई, और ये आज भी कहीं ना कहीं कैसे किसी ना किसी रूप में जिंदा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। जो प्राचीन एजुकेशन सिस्टम जो इतना ऊंचा पहुंचा था, उसका कारण ही यह था कि शिष्य जो है गुरु को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देता था, और गुरु की जो वाणी थी वही प्रसाद था, वही पूजा थी, और वही उसको पूरी तरह से अंगीकार भी करता था। और जब वो पूर्णता समाहित होती थी तो एजुकेशन अपनी एक्सेलेंस पे जाती थी। अब क्या है, अनफोल्डिंग ऑफ सिलेबस, एक सिलेबस है उसको पूरा करना है, लेकिन वहाँ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन था। होलिस्टिक का मतलब एक इंसान को, एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनने के लिए जिन भी गुणों की आवश्यकता है वो उसको देना एक गुरु का कर्तव्य हुआ करता था। आज एक रटन विधि हो गई है, वो एक उस वक्त रटन विधि ना होकर एक संस्कार में एक शिक्षा को ढाल दिया जाता था। रटन विधि से स्टार्ट किया जाता था, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत टाइम तक स्क्रिप्ट था ही नहीं, पूरे वेदों को रट के कंठस्थ करके जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया, लेकिन उसके बाद मनन होता था। सबसे पहले याद करना होता था, उसके बाद मनन होता था, चिंतन होता था। तो अभी तो सिस्टम बहुत चेंज हो गया है। अगर हम अपने पुराने एजुकेशन सिस्टम को आज फिर वापस ला पाएँ तो शायद, जैसे मैंने आपको बताया बिगिनिंग में, कि जो स्पिरिचुअल गुरु इंडिया हुआ करता था बाकी की दुनिया के लिए, हम उससे बहुत दूर नहीं हैं, क्योंकि सब कुछ है तो हमारे पास, कुछ हमारे पास है और हमारा ही दिया गया है। हमने उसको छोड़ के किसी और को अपनाने की कोशिश की। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, हम वापस जाना चाहते हैं। और ये तो पूरे विश्व भर में अगर हम कहें, लोग ये मानने लगे हैं कि जो शिक्षा पद्धति हमने जो शुरू की वो पूरे विश्व भर में व्याप्त है। पूरे विश्व में अमीर खुसरो ने कहा है कि इंडिया में इस तरह का एजुकेशन था कि दुनिया भर से लोग इंडिया तो आना चाहते थे, लेकिन भारतीयों को कभी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और भारतीय स्कॉलर्स जो हैं वो दुनिया भर में डिमांड में थे। उसका रीजन था कि जो गुरुकुल थे, जहाँ गुरु की बात, जब गुरु को इतना बड़ा स्थान दिया गया, गुरु ज्यादातर सेंट्स होते थे, प्रीस्ट होते थे, वो नहीं कि जो धर्म पढ़ाते थे। एंशिएंट इंडिया में धर्म का भी परिभाषा बहुत डिफरेंट था। वो रिलीजन नहीं था, वो जैन धर्म, बुद्धिस्ट और ये सब नहीं था। धर्म मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी था। वो गुरु अपने उस बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पढ़ाते थे। तो वो जो ये दोनों था, वाइस वर्सा था। गुरु शिष्य परंपरा ना वो खाली एक शिष्य की तरफ से थी, ना वो खाली गुरु की तरफ से थी। ये एक कल्चर था जिसको कि आजकल फिर से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। जी, इसी चर्चा को हम आगे फिर बढ़ाते हैं।
मैंने आपको बताया कि एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए ज़रूरी कि हम चाहते क्या हैं उस एजुकेशन से, व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन। सो जो कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्ति, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन वो है जो लिबरेट करती है। किस चीज़ से लिबरेट करती है? अंधकार से दूर ले जाकर रोशनी की तरफ ले जाती है। ज्ञान हमारे अंदर समाहित है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस अंतर्मन में झांकने के लिए जो गुरु तैयारी करते थे, वही बेसिक एम था एजुकेशन का। एक direct aim of education, whether literary or professional, was to make the student fit to become a useful member of the society. Whether he was carrying out trade, or he was a soldier, or he was a teacher, he should be a useful member of the society. The aim of education was to provide good training to young men and women so that they become the useful part of the society. And as I told you, the 4 purusharthas were to be carried out: dharma, arth, kam, moksha. Dharma means they have to carry out their responsibility. Arth means they should be made professionally ready so that they could carry out the economy of their family. They have to earn for their family. Kam means sex for progeny. To come up with next generation was also the duty of the household. And then moksha, do some such things not for yourself, for the entire society, which takes you towards liberation, which frees you from the fetters of life and death. So this was the basic aim of the society, that all the 4 purusharthas, dharma, arth, kam, moksha, were fulfilled. It's not only one that today what we are thinking, economically the child should become someone who is able to earn good money through some particular degree. से अब हम किसी और राह पे निकल। So basic thing is अभी जो टकराव है वो है एजुकेशन और क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन और नौकरी। Exactly. तो आज आपको बहुत सारे क्वालिफाइड लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनके बीच में अगर आप एजुकेटेड लोगों को ढूंढने चलेंगे तो शायद बहुत रेयर हो जाएगा। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न कि हम अपनी एम से भटक गए हैं। We have lost the aim of education. Now the aim of education has become earning money. Earlier, the aim of education was fulfilling all the 4 purusharthas of life, that is dharma, arth, kam and moksha. And I repeat, dharma means responsibility, responsibility towards yourself, responsibility towards your parents, responsibility towards the society, responsibility towards the larger canvas, that you have to take this forward, right? And you know, responsibility is also of prevention of culture. We should not lose our culture. Building good moral character, right? Personality development and cultivation of noble ideas were also the aims of the society, the aims of education in ancient India. Now, I am emphasizing again and again that infusion of religiousness was very important. Today what we are facing is like religion in politics. I don't think it is anything wrong if the meaning of religion is responsibility. If the politicians become responsible, I don't think there will be any problem in politics. So the first aim of education was infusion of religiousness, of duty towards whatever you are doing. If you are a soldier, you have to protect your country. If you are trading, you have to have ethics in your trade. If you are carrying out the household, it is your duty to look after everyone. So infusion of religiousness was the basic aim of the society, and through the education system, it provided background and piety of religiousness, which never meant that you should leave household and become a wanderer and go to the jungles, right? Religiousness never meant that. It meant that inculcate all those things in yourself so that you become the useful member of the society. And see, 2 systems were going parallel. Vedic system of education was going parallel, and the Buddhist system of education was also going parallel. In the Vedic system of education, after this brahmacharya ashram, you were prepared to go into grahastha ashram. Whereas in the Buddhist system of education, once you go to the monastery, you take education, and you were supposed to then wear the orange costume, and then you have to become a monk. Another thing, you may have a lot of knowledge, you may have a lot of desire and lot of aims, but you lack self-confidence, then education is of no use. So at that time, the aim of education was building self-confidence. Self-confidence in a way कि like आप अभिमन्यु को देखिए कि चक्रव्यूह में घुस गए, किस उससे पता था कि बाहर नहीं निकल, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि मैं घुस जाऊंगा, मुझे अपने कुल की रक्षा करनी है, मेरा ये धर्म है, मुझे इस वक्त लड़ाई लड़नी ही है. So that was the self-confidence in which actually helped Arjun to get into the Chakravyuh. See, another thing, another aim was like building civil and social duties. As I am emphasizing again and again, the ultimate aim of education was moksha. Moksha through what? Moksha through fulfilling the duties, not by leaving home
कि गृहस्थ आश्रम का भी पालन नहीं करना है, माता पिता को भी छोड़ देना है, पत्नी को भी छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया और जंगल में नहीं। एजुकेशन का मतलब था कि आपने ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर एजुकेशन प्राप्त की, अब गृहस्थ आश्रम को अच्छे से निभाना है, माँ बाप की सेवा करनी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में जाना है, उसके बाद संन्यास आश्रम में जाना है। एक अगर ये हम समझें कि एक बहुत अच्छी शिक्षा की पद्धति जो 4 भाग में अच्छी तरह से विभाजित किया गया था और हर विभाजन का एक अपना अपना एक कर्तव्य था और एकदम सीधा निहित था कि ये इस उम्र से लेकर इस उम्र तक आपको यहाँ पे ये करना है, इस उम्र से लेकर इस उम्र तक आपको यही करना है। तो ये बहुत अच्छी पद्धति थी और फोकस्ड लाइफ थी और मैं समझता हूँ कि शायद आज के समय में एक यहाँ पे भी एजुकेशन तो मोर और लेस हम दे रहे हैं या ले रहे हैं, लेकिन एक पद्धति की जो एक फिक्स्ड पद्धति की जो कहीं कमी महसूस हम कर रहे हैं शायद। इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है वो है रेजिडेंशियल सिस्टम। पहले एक रेजिडेंशियल सिस्टम था, उपनयन संस्कार हुआ और बच्चे को गुरु ले गए, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ, समावर्तन सेरेमनी की। जब समावर्तन सेरेमनी, तभी वो पब्लिक लाइफ में वापस आया। उसके पास कोई डाइवर्जन नहीं था। उसके पास सिर्फ एक सोल एम था कि गुरु के द्वारा जो भी दिया जा रहा है उसको ग्रहण करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। एजुकेशन प्रैक्टिकल भी थी, लेक्चर ओरिएंटेड भी थी, सभी तरह से थी, लेकिन बेसिक एम ब्रह्मचर्य में क्या था। अभी क्या है, आपके पास बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं। आप स्कूल जाते हैं, शाम को दोपहर कुछ और है, रात को एक पार्टी है, फिर टीवी भी देखना है, घर शादी में भी जाना है। सो इट्स नॉट द प्रॉब्लम विद एजुकेशन सिस्टम। इंटरनेट सिस्टम ने और भी ज्यादा बच्चों को अपने स्थानों से या अपनी सोच की प्रक्रिया उससे बहुत परे ले गए हैं। ऐसा पूरा नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम ही करप्ट है। इट्स द सिस्टम हैज चेंज्ड। पहले जब आप बिल्कुल एक सेक्लूडेड एनवायरनमेंट में चले गए गुरु के साथ, आप अपने माता पिता को भी भूल गए, बहन भाई कुछ नहीं आपने देखा, पूरा फोकस्ड लाइफ था। और जब आप उस लाइफ को एंटायरली सोलली एक होलिस्टिक लेकर वापस समाज में लौटते थे, तो आपको, जैसे कि आप देखो कि चाइना की वॉल का निर्माण हुआ, ठीक है, किस लिए हुआ? कि भाई कोई भी उसके ऊपर आक्रमण उसको क्रॉस ना कर सके, और किसी ने क्रॉस किया भी नहीं इतिहास में। लेकिन कैसे हुए आक्रमण? कि भाई जो वहां पर गेटमैन थे उनको कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो कमी किस चीज की थी? आर्किटेक्चर की कमी नहीं थी, कमी थी एजुकेशन की। वो जो वहां द्वारपाल थे उनको एजुकेट ही नहीं किया गया मॉरली कि आपको ऐसा नहीं करना है। ये समय समय चीन के इतिहास में देखा जाए तो ये समय समय पे ये हुआ है। एक मॉरल एजुकेशन की कमी की वजह से वो जो वंडर है जो हम चांद पे से देख पाते हैं वो बेकार हो गया। तो कमी वहां थी एजुकेशन की। दैट इज व्हाट एम ऑफ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। आपको खाली डिग्री देना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिग्री भले ही ना होती, कोई द्वारपाल बनने की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन एक मॉरली एक अपने स्टेट के लिए एक मॉरल तो होना चाहिए कि मर जाएंगे, शीश कटा देंगे, लेकिन अपने देश को नहीं जाने देंगे। तो चाइना की दीवार बेकार हो जाती। क्यों? क्योंकि एम ऑफ एजुकेशन वाज डिफरेंट। वो उन द्वारपालों को, आपने इतनी बड़ी दीवार तो बना दी, लेकिन अपने द्वारपाल को तो आपने ये बताया ही नहीं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है किसी भी हालत में। ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई। और देखिए अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जो शिक्षार्थी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैडम, पहला सवाल हमारे पास बिहार से एक मोहम्मद जी का आया है। ये पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, जो कि आज अभी इस संदर्भ में हम बात तो नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्राचीन शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका सवाल आया है तो आप इसमें कुछ प्रकाश डालें। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल। राइट, वी हैव बीन ट्राइंग इट। बहुत सारी इसमें सिस्टम चले, ईच वन टीच वन, किसी भी तरह से, मतलब हर किसी को एजुकेशन दिया जाना चाहिए। एजुकेशन हैज़ टू बी इम्पार्टेड टू एवरीवन, एटलीस्ट टिल द एलिमेंट्री लेवल। दैट इज व्हाट वी मीन बाय। एक दूसरा सवाल इससे कुछ मिलता जुलता है, कुछ बात आप बता भी चुकी हैं। प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति के बीच कैसे सामंजस्य प्रभावी बनाया जाए, कैसे बिछाया जाए। और इसी में इन्होंने दूसरा सवाल भी किया है कि छात्रों में मूल्यों का विकास कैसे किया जाए। जो अभी हम मूल्य की अभी बात कर ही रहे थे, वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे थे, तो 2 सवाल इनके। ये शैलेंद्र शर्मा है झारखंड से। देखिए, जहाँ तक बात मूल्यों की है, मूल्य कहाँ, एजुकेशन कहाँ से शुरू होती है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। क्या एजुकेशन वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे हमने एक स्कूल में एडमिशन लिया, या एजुकेशन वहाँ से शुरू हो जाती है कि जहाँ हमने जिस घर में जन्म लिया? क्योंकि जब आप एक लैंग्वेज बोलते हुए आ रहे थे तो वो लैंग्वेज स्कूल ने तो सिखाई नहीं है। जब बच्चे का एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है तो वो किसने सिखाया? वो टीचर ने तो सिखाया नहीं है। तो एजुकेशन तो घर पे ही शुरू हो गई थी ना। तो जो मॉरल्स की बात है वो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच, गुरुकुल की बात क्या थी? कुल क्या था? वो परिवार था, गुरु का परिवार, कि बच्चा गुरु के परिवार का एक सदस्य बन जाता है। इसलिए गुरु के जहाँ जो चलन है
गुरु के यहाँ जो किया जाता है, जो खाया जाता है, जो पहना जाता है, जो व्यवहार किया जाता है, जिस तरह से चीज़ों को निभाया जाता है, उसी तरह से बच्चा भी निभाता है। तो मॉरल एजुकेशन की जहाँ तक बात है, वो खाली जिम्मेदारी स्कूल की तो नहीं हो सकती, नहीं है वो स्कूल की हो सकती है अगर इसको वापस हम कंप्लीटली रेजिडेंशियल एजुकेशन में कन्वर्ट करें। अब आप ये देखिए, स्कूल में बच्चे ने 8 घंटे बिताए 24 घंटे में से, बाकी टाइम बच्चा कहाँ है? घर पे ही है। 16 घंटे तो वहाँ पर है। तो वो जो 16 घंटे हैं वो भी तो मॉरल बिल्डिंग का काम कर रहे हैं ना। तो उन 16 घंटे में भी तो मॉरल एजुकेशन की जहाँ तक बात है, ये एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता। ये संस्कार हैं जो हमें हमारे घर से मिलते हैं, हमारे पड़ोसियों से मिलते हैं, जब हम बस में आ रहे हैं तो ड्राइवर से मिलते हैं, जब हम गेट पे उतर रहे हैं तो द्वारपाल से मिलते हैं, जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन एंड इम्बाइबिंग ऑफ एजुकेशन, जिसमें उनका प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। ठीक है, अपने जो हमारे पुराना कल्चर चला आ रहा है उसको जितना हम प्रिजर्व करेंगे उतना ही हम मॉरली स्ट्रॉन्ग रह पाएंगे। बिल्कुल ठीक बता रही हैं। और एक इसी से जो सामंजस्य की बात करते हैं कि प्राचीन और एक आधुनिक में कैसे एक सामंजस्य बिछाया जाए, उसमें हमें गुरुकुल की जो जिम्मेदारी है वो माता पिता को भी निभानी पड़ेगी। शिक्षक निभा रहे हैं, लेकिन कुल, शिक्षक से आपने कुल को अलग कर दिया है। तो कुल जब परिवार है तो कुल का कर्तव्य जब परिवार निभाएगा तो गुरु शिक्षा प्रदान कर पाएगा, वहाँ जाके एक सामंजस्य होगा। ये एक मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं और जिनका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ से बैठ के दे रहे हैं, मैं निवेदन करूँगा कि उन्हें ध्यान से सुने और जो अपने जब हमारे एसएलएम को पढ़ेंगे तो उनके साथ उसे जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जो बात एसएलएम में लिखी गई है निश्चित तौर से यहाँ पे उसका एक फीडबैक मैकेनिज्म तैयार हो रहा है, उसी को आपके पास पहुँचाया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप एसएलएम पढ़ेंगे तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो यहाँ कोट किए जा रहे हैं, संभवतः आप उनको समझ पाएंगे। और जब आप अपना आंसर, जब अपने उत्तर आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे, इससे मिलते जुलते कोई भी सवाल आएंगे तो निश्चित तौर से ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे, बहुत ही योगदान होंगे। और आप अपना जो आप अपने उत्तर वहाँ प्रस्तुत करेंगे निश्चित तौर से वो अच्छे होंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप सवाल पूछते रहें और हमसे जुड़े रहें। और साथ के साथ अगर आपको कोई आपको लग रहा है कि कोई आपको सवाल आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो हमारे पास ईमेल भी है, जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में भी हम बताते हैं और बीच बीच में भी हम फ्लैश आउट करते रहते हैं। आप हमारे फ़ोन नंबर और ईमेल के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, आप आगे बात कर रहे थे। मैं संस्कारों की बात कर रही थी। तो हमारे यहाँ 16 संस्कार बताए गए हैं। 5 वर्ष की उम्र में विद्या आरंभ का संस्कार होता था, जिसमें माँ बाप घर में ही थोड़ा थोड़ा बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देते थे। और फिर 8 साल की उम्र में उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के बाद बच्चे घर छोड़कर गुरुकुल में चले जाया करते थे। और ये उपनयन संस्कार की अलग अलग उम्र थी। जैसे ब्राह्मण बच्चे के लिए वो 8 साल की उम्र में होता था, वैश्य के लिए वो 10 साल की उम्र में होता था, और क्षत्रियों के लिए वो 10 साल में होता था, और वैश्यों के लिए वो 12 साल की उम्र में होता था। साथ साथ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम भी चल रहा था। वहाँ भी प्रबज्जा का संस्कार होता था, लेकिन उसमें कास्ट सिस्टम कोई नहीं था। वो सबके लिए 8 वर्ष की उम्र में हुआ करता था। तो संस्कारों से ही वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम शुरू होता था, जिसको आज कभी हमने पीरियडाइज कर दिया कि 5 साल की उम्र में बच्चे का एडमिशन होता है। हम उस सिस्टम को लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके चेंजेस आ गए, उसमें थोड़े से चेंजेस आ गए हैं। जब इसको इनिशिएशन सेरेमनी कहा जाता था, मीन्स एजुकेशन को शुरू करना। इनिशिएशन सेरेमनी के बाद बच्चा गुरुकुल में आ जाता था, तो और गुरु के शिष्य, गुरु के पूरी उसका परिवार का हिस्सा बन जाता था, और वहीं उसका एजुकेशन हुआ करता था। ये एक जो हिस्सा बनने की जो आपने बात की, अगर जैसा एक सवाल भी अभी आया था, तो ये जो आज के समय में हम इसे रेसिडेंशियल स्कूल्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक वहाँ पे है, लेकिन रेसिडेंशियल स्कूल्स जो है आज के मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल, वो किस प्रकार से फिर हम इनको भिन्न करें पुराने गुरुकुलों से? देखिए, मॉडर्न जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं उनका पैटर्न क्या है? उनका पैटर्न है कि 4 महीने वहाँ पर एजुकेशन होती है, फिर 2 महीने की छुट्टी होती है, फिर 4 महीने एजुकेशन होती है, फिर 2 महीने की छुट्टी। ये एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और सभी को समझने के लिए। जबकि गुरुकुल सिस्टम में क्या था कि आपने 8 साल की उम्र में घर को छोड़ा और सालों साल आप घर नहीं जाते थे। 5 साल नहीं जाते थे, 7 साल नहीं जाते थे, कभी कभार पेरेंट्स मिलने के लिए आ जाते थे, घंटे 2 घंटे के लिए, और अपने बच्चे को देखकर चले जाते थे। अभी रेजिडेंशियल सिस्टम का बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जब वो स्कूल में है 4 महीने के लिए तो वो केवल पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो घर चले जाते हैं 2 महीने के लिए तो वो केवल पढ़ ही नहीं रहे हैं। वो सारे टाइम इंटरनेट पे होते हैं, टीवी पे होते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, सारे काम करते हैं, एंड देन दे कम बैक टू द रेजिडेंशियल स्कूल। सो इट्स अ लार्ज गैप।
they jump from one system to another 2 system. महीने के दौरान वो अपने जहाँ से वो आए तो वहाँ का सब कुछ भूल चुके वो होते सब हैं। कुछ भूल चुके होते हैं, उससे कोई कनेक्शन नहीं होता। फिर वो जब वापस आते हैं तो उनको फिर से एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। हफ्ता 10 दिन उस चीज़ में निकल जाते हैं, उनको घर की याद आती है, घर के खाने की याद आती है, पेरेंट्स की याद आती है। सो रेजिडेंशियल स्कूल भी आजकल इस वजह से गुरुकुल का कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि एक तो ये बहुत समझने वाली बात है कि जो बीच में बहुत लंबे लंबे के जो ब्रेक्स आ जाते हैं, निश्चित तौर से वो एक डाइवर्शन है। वो निश्चित तौर पे एक और डाइवर्शन है। जो पुराने गुरुकुल की पद्धति अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। वहाँ पे एक बार आप गए तो फिर तो आप वो जो समय है पूरा करके ही अपनी शिक्षा का पूरा गुरु दक्षिणा के उपरांत ही आप घर लौटेंगे। ये एक समझने की बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये हम डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश करेंगे, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न, और जो हम उसके में कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ये एक पॉइंट समझने वाली बात हो सकती है। और ये एक एम्फेसिस की भी बात है। और अगर हम क्योंकि आज के सिस्टम को तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज इज ग्रेजुअल। चेंज इज ऑलवेज ए ग्रेजुअल एंड इट इज अ ग्रेजुअल। ओवरनाइट तो हम चेंज नहीं कर सकते कि चलिए आज। लेकिन रेसिडेंशियल स्कूल में हम छुट्टियां कम करके कंटिन्यूअस नहीं कर सकते, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल के वो जो अपने कार्यक्रम है वो ये तो ना एक सोसाइटी का भी तो सिस्टम है ना। अब सोसाइटी का सिस्टम की रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चा आप ये भी तो देखिए कब जा रहा है। जनरली 6th स्टैंडर्ड के बाद बच्चा रेजिडेंशियल स्कूल में जा रहा है। 5th स्टैंडर्ड तक की एजुकेशन उसने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के पास रह के या डे स्कूल्स में से ली है। तो उस गैप को, और फिर कितने टाइम के लिए जा रहा है? जनरली अप टू 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स गो टू द रेजिडेंशियल स्कूल। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं शिक्षा और अपने शिक्षार्थियों से दोबारा जुड़ेंगे इस ब्रेक के बाद।